हेलो स्टूडेंट्स। मैं बीएल शर्मा, मैथ सर, will discuss with you important MCQs NCERT exemplars of class 9 chapter 4 linear equations in two variables. Very important for CBSE students, very important for the student of Rajasthan board, and very important MCQs for the students who are preparing for NTSC National Talent Search Examination. I will be using both the languages here, English and Hindi. ये मैं आपके साथ में इंपोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 9 से डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज कीप अ नोटबुक एंड पेन विथ यू, और जहां आपको जरूरत पड़े आप वीडियो को पॉज करें और अपनी नोटबुक में आप उसको नोट करें। सो हियर इज द first sample question issued by means CBSE. Sample question number 1 is the linear equation that is 3x minus y is equal to x minus 1 has. Student देखिए ये linear equation in two variable है, and linear equation in two variables has infinitely many solutions. आपने देखा होगा find the 3 solutions, find the 4 solutions, 5 solution निकालिए, 6 solution निकालिए। तो linear equation in two variable का हमेशा ही infinitely many solution होते हैं। That is why C is the correct option here, infinitely many solutions. Next question. A linear equation in two variables is of the form ax plus by plus c is equal to 0, where 4 options are given here. A is not equal to 0, b not 0, a is 0 or b can not be 0, a is not 0 but b can be 0, a and c both are equal to 0. कौन सा इसमें फॉर्म आ गया? देखिए आपके आंसर ए दे रखा है, बट ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. दिस इज पॉसिबल. both variables, the definition of linear equation into variable देखिए क्या है. When you go for the definition, that is from your NCERT book, and any equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0, दोनों 0 नहीं होना चाहिए, is called a linear equation in two variables. So दोनों का 0 नहीं होना चाहिए. देखिए ये आपका इक्वेशन है. मैं कैन आई राइट x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. I can write 0 into x plus y plus 3 is equal to 0. ये भी लीनियर इक्वेशन है. मीन्स a not 0, b not 0, ये भी लीनियर इक्वेशन. मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों 0 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. a कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0 और b का कोएफिशिएंट 0 है. yes, it is also linear equation. A is equal to 0 but b is not equal to 0, that is also a linear equation in two variable. So student, first is the correct option, second is also the correct option, and c is also the correct option. So here a can be correct, b can be correct and c can be correct. इसको चेंज करिए, a भी करेक्ट है, a और b दोनों 0 नहीं होंगे तो भी देखिए इसमें दोनों 0 नहीं है तो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. इसमें कोएफिशिएंट ऑफ a 0 है देखिए इसमें, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ b नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो भी लीनियर इक्वेशन है. और देखिए कोएफिशिएंट ऑफ a 0 नहीं है, यहाँ पे इसका 1 है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ y मींस y का कोएफिशिएंट 0 है तो भी ये लीनियर इक्वेशन है. सो हियर द आंसर कैन बी a, कैन बी b और कैन बी c. ये तीनों ऑप्शन इसमें यहाँ पे करेक्ट हैं. नाउ next question, write the correct answer in each of the following. The linear equation 2x minus 5y is equal to 7. Again देखिए ये linear equation in two variable है, variables है. Linear equations in two variable always has infinitely many solutions. So here C is the correct option. यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है.
तो इसका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैज ऑलवेज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उसके एंडलेस सॉल्यूशंस होते हैं. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. The equation, question number 2 here. The equation 2x plus 5y is equal to 7 has a unique solution if x and y are. हमने पढ़ा है कि linear equations in two variables has infinitely many solutions. लेकिन यहाँ पे different means condition है. अगर ये natural number हो तो क्या हो, देखिए, if it is a natural number, so you can write here 2x plus 5y is equal to 7. Take x is equal to 1 and y is equal to 1. 2 into 1 plus 5 is equal to 1 left hand side. So 2 plus 5, that is 7. That is equal to right hand side. लीनियर इक्वेशन में 1,1 के अलावा कोई सोल्यूशन इसका हो ही नहीं सकता. अगर आप नेचुरल नंबर 2 लोगे देन इट इज नॉट पॉसिबल. जो दूसरा वैल्यू आएगा वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा. सही, राइट. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. पॉजिटिव रियल नंबर्स में आपके सारे के सारे जो नंबर है सारे के सारे पॉजिटिव और रेशनल नंबर हो जाएंगे. रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर है, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. रेशनल नंबर्स आर आल्सो नॉट पॉसिबल. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है इट शुड बी यूनिक, मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3. See here, if 2, 0 is a solution of the linear equation 2x plus 3y is equal to k, then determine the value of k here. Say, ये हमारा इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to k. What you do? You put x is equal to 0. Sorry, x is equal to 2 and y is equal to 0. देखिए यहाँ से यहाँ पे x is equal to 2 and y is equal to 0 पुट करें तो you will find here 2 into 2 plus 3 into 0, that is k. So 4 plus 0 is equal to k. 3 into 0 is equal to 0. So 4 is equal to k. Or we can say k is equal to 4. So A is the correct option here. So the answer is A. A is the correct option. The value of k will be 4. यहाँ पे k की value 4 होगी. Next question. Any solution of the linear equation that is 2x plus 0y plus 9 is equal to 0. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 0 है. देखिए हम कुछ इसका सॉल्यूशन लेके देखते हैं. देखिए taking some solutions here. Let the equation हमारा है 2x plus 0y plus 9 is equal to 0. Or we can write 2x plus 0y is minus 9. लेट सपोज करिए कि y का वैल्यू आपने 0 लिया तो 2x plus 0 into 0 is equal to minus 9. 2x is minus 9 and x can be minus 9 by 2. तो एक हमारा जो सॉल्यूशन है वो है मींस minus 9 by 2, 0. इसी में अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, लेट सपोज y is equal to take some different value. सपोज आई एम टेकिंग हियर, मैं कुछ वैल्यूज निकाल रहा हूं टेकिंग 3 और 4 सॉल्यूशन. लेट y is equal to 1. मैंने y is equal to 1 सपोज किया तो 2x plus 0 into 1 that is minus 9. यहाँ पे जहां भी y है उसकी जगह आप 1 पुट करिए. तो अगेन 2x plus 0 is minus 9. So 2x is minus 9. x is minus 9 by 2. तो सेकेंड सॉल्यूशन हमारा हुआ यहाँ पे I can take x तो minus 9 by 2 है लेकिन हमने लिया y is equal to 1. Here y is equal to 1, then x is equal to minus 9 by 2. आपने देखा यहाँ पे कि मैंने y की वैल्यू चेंज की लेकिन x की वैल्यू रिमेन सेम है.
मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेट लेट y इज इक्वल टू, y का वैल्यू कुछ और चेंज करता हूं, लेट y इज इक्वल टू 2, y का इसमें 2 पुट करिए, तो दैट इज 2x प्लस 0 इंटू 2, दैट इज -9। 2x plus 0 is -9. 2x is -9. तो x is -9/2। सो थर्ड हमारा जो सोल्यूशन हो ये हुआ, x is -9/2 बट y is equal to 2। इन 3 एग्जांपल्स को हम अगर गौर से देखें तो हमने देखा कि y की वैल्यू तो चेंज हो रहा है, लेकिन x का वैल्यू -9/2 ही है। सो हियर चेक कहाँ पे x का वैल्यू -9/2 है, तो यहाँ पे इसमें देखेंगे कि ये जो आंसर है वो A इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे x इज -9/2 है और m कैन बी एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर मीन्स रेशनल और इरेशनल। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। देखिए, the graph of the linear equation 2x plus 3y is equal to 6 cuts the y-axis at the point। कहाँ पे कट करेगा देखिएगा, यहाँ पे हमने इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए, फर्स्ट आई वांट टू ड्रॉ, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। देखिए ये अपना ग्राफ है, यस। एक्स ये एक्स एक्सिस है और ये सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हमें पता है कि y एक्सिस पे x का वैल्यू हमेशा ही 0 होता है। तो पुट सॉरी x इज इक्वल टू 0, सो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। तो एक जो इसका सॉल्यूशन है, x और x 0 हो तो y कितना है, 2 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कहां से पास होगा, दैट इज 0, दैट इज y एक्सिस, दैट इज 2, यहां से पास होगा ये पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2। 0 क्यों है कि द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो ये कौन से पॉइंट से पास होगा, अब देखिए अगर मैं इसको सेम टू, अगर मैं इसको ये कहूं कि इन प्लेस ऑफ y एक्सिस अगर ये पूछे कि कट्स द x एक्सिस एट व्हाट पॉइंट, तो हमें पता है कि अगर आपको देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, तो पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करेंगे 2x प्लस 3 इंटू 0, दैट इज 6। इसमें पुट करिएगा आप, तो देखिए 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। ये जो पॉइंट है ये है 3 और ये है 0, यस। तो ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज आवर x एक्सिस, और ये है हमारा y एक्सिस। कहां से पास हुआ, अगर इन दोनों लाइंस को मैं ज्वाइन कर दूं तो यू विल सी हियर दैट यू विल सी हियर दैट ये देखिए, इन दोनों को ज्वाइन करने से ये जो लाइन बनती है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है इस इक्वेशन का। कौन सा, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है लीनियर इक्वेशन, y एक्सिस को 0,2 और x एक्सिस को 3,0 पे इंटरसेक्ट करता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन है कि कहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो दैट इज 0,2, एंड आई थिंक दैट D इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Sorry, y-axis. Yes, it is not 0,2. It is that is 2x plus 3y is equal to 6. Yes, the value of x is 0. Then okay.
That is 0, 2 is the correct option. Yes. Question number 6. The equation x is equal to 7 in two variables can be written as, देखिए, we can write x is equal to 7. Coefficient of x नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 है, 1x is equal to 7. We can write 1x minus 7 is equal to 0. Sorry, 1x is equal to, that is 7. यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7. जब y वेरिएबल का कॉफिशिएंट नहीं होगा तो उसको हम x 0 से ले सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 7. तो कहाँ पे देखिए, ये रहा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई. या डेसिमल का मतलब मल्टीप्लीकेशन है. यू कैन राइट 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, दैट इज 7. So B is the correct option here. This is question number 6. Next question on your screen. Any point on the x-axis is of the form. कोई भी point जो x-axis पे है वो देखिए, कोई भी point जो x-axis पे है देखेगा, ये हमारा x-axis है. इस पे x-axis पे हमेशा ही y का वैल्यू 0 होता है. That is x-axis. And this is y-axis. So y will be 0, so we can write x into 0. X का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है. X can be 0, can be 1, can be 2, can be -1, can be -1/2, can be any real number. Real number means rational or irrational. तो क्या हो, but y is always 0. So here x axis C is the correct option. ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो y वेरिएबल है वो हमेशा ही आपका y का जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ही 0 होगा x एक्सिस. लेकिन अगर ये पूछते कि एक्सिस ऑन y एक्सिस अगर ये होता तो देखिए y एक्सिस पे हमेशा ही ऑलवेज on y axis x coordinate is 0, so you can write 0, y. So on y axis 0, y, on x axis x, 0. लेकिन क्वेश्चन में है, पूछा है, in the question we have to write for the x axis only, so that will be x, 0, means y is equal to 0. C is the correct option here. Next question. Any point on the line y is equal to x is equal to 4. देखिए यहाँ पे y और x दोनों का वैल्यू सेम है. और आप ए ऑप्शन में देखिए x दैट इज a और y दैट इज, ये भी दोनों सेम है. तो इट मींस a is the correct option. y और x दोनों इक्वल है. y is equal to x means this equal to this. So a is the correct option here. The equation of x-axis is of the form. x-axis का equation of x-axis हमें पता है कि जो x-axis का जो equation है उस पे y is equal to 0 होता है. We know that the y coordinate on x-axis is equal to 0. That is why B is the correct option. x-axis पे y coordinate का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है. लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वी हैव टू राइट फॉर x एक्सिस, दैट विल बी y इज इक्वल टू 0. B इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 इज द लाइन. y इज इक्वल टू 6. देखिए यहाँ पे हम इसको लेंगे, वी कैन राइट y इज इक्वल टू 6. वी कैन राइट 0 into x plus 1 into y equal to 6 हमने लिया. यस, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हुआ. अब आप देखिएगा कि इसमें x का वैल्यू 0 है, तो लेट x इज इक्वल टू 0 तो y विल बी 6. लेट x इज 1 देन y विल बी 6. लेट x इज 2 देन y विल बी 6. तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना सकते हैं. देखिए ये जो हम एक ग्राफ बना पाएंगे यहाँ पे. देखिए हमने ग्राफ बनाया यहाँ पे.
देखिए यहाँ पे ये जो x इज 1, y इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देखिए ये दिस इज x एक्सिस and this is y axis. We can write x axis. We can write y axis. इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, फर्स्ट 0,6, सेकेंड 1,6, थर्ड 2,6। देखिए ये दैट इज 1, दैट इज दिस इज 0, दैट इज x एक्सिस कितने मार्क कर देता हूं, दैट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यस 0,6 will be this point, that is 1, 2, 3, and this point is this. 0,6 is this. 2, 1,6 is this, and 2,6 is this. अगर आप इनको सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, then you will get a line. ये जो लाइन है वो ही y = 6 को रिप्रेजेंट करता है। Linear equation in two variable always represent a straight line. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, देखिए ये वाला। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मींस इसका 3 सॉल्यूशंस लेके फिर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन कैसी लाइन है, देखिए ये लाइन है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल लाइन है, और इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। So what is the answer? This line is parallel to x-axis at a distance 6 units from the origin. So A is the correct option of this question. Question number 11. X is equal to 5 and y is equal to 2 is a solution of the linear equation. कैसे पता करें? तो इनमें क्या करते हैं देखिएगा। We take the first part A. We check x plus 2y is equal to 7. लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। ये देखिए x is equal to 5 and y is equal to 2, it is given. So that is 5 plus 4, that is 9. But that is the right hand side is 7, that is not equal to right hand side. तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, नहीं है। Then we check for the part B. देखिए पार्ट B है 5x plus 2y is equal to 7। वही वैल्यू पुट करेंगे पुट लेफ्ट हैंड साइड में। चेक करने का तरीका ये है कि x की जगह आप 5 पुट करिए और y की जगह आप 2 पुट करिए, दैट इज 25 plus 4, दैट इज 29। इसमें भी राइट हैंड साइड 7 है, तो ये दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, सी पे। देखिए सी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये रहा सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। इसको हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, बाई तरफ से। x का वैल्यू 5 पुट करिए और y की जगह 2 पुट करिए। देखिए x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। इनको जब ऐड करेंगे तो ये 7 है, और राइट हैंड साइड भी क्या है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस ये x और y का वैल्यू C को सेटिस्फाई करता है, तो यस वी कैन से दैट C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इसका आंसर है C। आपको ये वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हमें डी पार्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -2,2, 0,0, 2,-2, देन इट इज ऑफ द फॉर्म। देखिए अगर आप इनको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो देखो x और y का दोनों का सम कितना है। देखिए आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे -2 + 2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए सेकंड वाले पार्ट में देखिए 0 + 0 इज इक्वल टू 0। थर्ड में देखिए
2 प्लस -2 दैट इज ऑल्सो 0, यानी x और y दोनों का सम 0 आ जाना चाहिए, और ये रहा x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। सो इसका आंसर है बी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप इसमें पुट करके भी देखेंगे, x इज इक्वल टू -2, यू कैन वेरीफाई इट। देखिए x, सी पार्ट बी पार्ट में चेक कर रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई, x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, -2 + 2 ये 0 है, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर आप 0 + 0 पुट करेंगे, 0 + 0 दैट इज 0 राइट हैंड साइड, 2 - 2, 2 - 2 वो भी 0 होगा। तो ये इक्वेशन जो बी है, x + y = 0, इसको सेटिस्फाई करता है। दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। The positive solution of the equation ax plus by plus c is equal to 0 always lies in the, हमें पता है कि जो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा यानी वो कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, दैट इज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ओनली। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सॉरी क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव है एक्स और वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में है कि पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज व्हाई द ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। Next, the graph of the linear equation 2x plus 3y is equal to 6 is a line which meets the x-axis। हमने एक क्वेश्चन नंबर इससे पहले और कर चुके हैं कि x-axis पे स्टूडेंट कीप इन माइंड कि y का वैल्यू 0 होता है। सो यू कैन राइट ऑन x-axis y is equal to 0 always। So you can write 2x plus 3y is equal to 6। यहाँ पे आप y की जगह 0 पुट करिए, y is equal to 0। So 2x plus 0 is equal to 6। So 2x is equal to 6, x is equal to 6 by 2, so x is equal to 3। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा, x अगर 3 है तो y 0 है, और अगर y 0 है तो x 3 है। सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन, 3,0। Question number 15 on your screen. The graph of the linear equation y is equal to x। देखिए x और y दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। किसमें? देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में a में 3/2 माइनस 3/2 दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक का साइन पॉजिटिव और दूसरे का साइन नेगेटिव है। ये 0 3/2 ये भी दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 1,1 दोनों इक्वल है। D में दोनों इक्वल नहीं है, इट इज वन इज -1/2 एंड अदर इज +1/2, दोनों इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे यू विल सी दैट C इज द करेक्ट ऑप्शन। y इज इक्वल टू x और y दोनों इक्वल है और वो C को मैच करता है, दैट इज वाई ऑप्शन C इज द करेक्ट। If we multiply, question number 16, if we multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of the linear equation remains the same। सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। So that is B is the correct option। Question number 17. How many linear equation in x and y can be satisfied by x is equal to 1 and y is equal to 1? क्वेश्चन में यह है कि कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं कि जिनका सॉल्यूशन x is equal to 1 और y is equal to 2 है। मैं कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने रैंडमली लिखा है यहाँ पे x plus y,
x की जगह 1 लिखिए, y की जगह आप 2 लिखिए, तो ये कितना आ गया 3। तो देखिए दिस इज वन इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गया, देखो इसको सेटिस्फाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू दैट इज 3, एक इक्वेशन बन चुका। अब मैंने रैंडमली अपनी मर्जी से कुछ भी लिखिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, x की जगह आप 1 लिखिए और y की जगह 2 लिखिए, दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4, ये 4। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इस इक्वेशन को भी x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेंगे। फिर मैंने अपनी मर्जी से मींस रैंडमली आई कैन राइट x माइनस वाई, x की जगह आप 1 लिखिए, y की जगह आप 2 लीजिएगा, दैट इज -1। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो हमने देखा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, जिसका सॉल्यूशन है बहुत सारे लीनियर इक्वेशन बन सकते हैं, और मैंने यहाँ पे केवल 3 ही बनाए हैं, दिस एंड दिस। सो व्हाट इज द आंसर? C इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज C is the correct option. Infinitely many linear equations can be possible which satisfy x is equal to 1 and y is equal to 2, means जिसका solution x1 हो और y2 हो, endless equation linear equations बन सकती है। The point of the form a comma a always lies on, देखिए आप ये x और y दोनों का वैल्यू सेम है। The point always lies on x-axis on the line y is equal to x. Yes, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों सेम है, x is a and y is equal to a, x is a and y is equal to a. So C is the correct option here. Next question देखिए, the point of the form a comma minus a always lies on the line, देखिए दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वल, लेकिन एक दूसरे का डिफरेंट है, मींस इन दोनों को सम करके देखिए, व्हाट इज द सम, इन दोनों का मैं सम करूं, मींस फर्स्ट इज a एंड सेकेंड इज माइनस ए, तो a माइनस ए दैट इज 0, दोनों का सम x का और y दोनों का सम 0 हो जाना चाहिए, और ये जो सेटिस्फाई करता है वो ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप इसमें पुट करके भी देखिए, वेरिफिकेशन कर लीजिए, ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड that is x plus y, you can write x is equal to a and y is equal to minus a minus a, that is 0, that is the right hand side. So D is the correct option of this question. Yes. ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे दैट इज इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। पुट करें इसमें x is -2 and y is -1. So 2 into -2 plus 3 into -1, that is k. So -4 minus 3 is equal to k, -7 is equal to k. It means the value of k is equal to -7 answer. Next question. Find the value of k if x is equal to 2k and y is equal to k is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to 0. So first we write here 2x plus 3y is equal to 10. इसमें क्या पुट करना है हमें, x की जगह 2k and y is equal to k, ये रहा।
x is equal to 2k and y is equal to k हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. So 2 as it is, in place of x you write 2k plus 3 as it is, in place of y you write k, that is 10. 2 2s are 4k plus 3k is equal to 10. 4k plus 3k, that is 7k is equal to 10. So k is equal to 10 upon 7. So the value of k here is 10 upon 7, and this is the answer of this question. k का वैल्यू 10/7 होगा. क्वेश्चन नंबर 21. Next question. Find the value of a if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to 10. देखिए क्वेश्चन है हमारा 2x plus 3y is equal to 10. हमें पुट करना होगा. यहाँ पे क्या दे रखा है? पुट x is equal to 2 and y is equal to 1. So 2 into 2 plus 3 into 1 is 10a. So 4 plus 3, that is 10a. So 7 is equal to 10a. Or we can write 10 is equal to 7. So a is equal to 7 upon 10. So the answer of this question will be, the value of a will be 7 upon 10. Next question. Yes, the same question is here. Find the value of k if x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. So equation given is, हमें equation दे रखा है 2x plus 3y is equal to k. क्या पुट करना होगा हमें? x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3. So 2 as it is, in place of x, put 1/2. 3 as it is, in place of y, we can put 1/3. That is k. 2 and 2 cancel, that is 1. 3 and 3 cancel, that is 1. That is k. So 2 is equal to k, or the value of k is 2 here. So 2 is the answer of this question. Next question. Find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to 1/k. आपको चाहिए कि आप नोटबुक में मुझसे पहले सोल्व कर लें या इस वीडियो को पॉज करें, सोल्व करें और अपना आंसर वेरीफाई करें. We write 2x plus 3y is 1/k. पुट करें x is equal to 2 and y is equal to 1. See here, x is equal to 2 and y is equal to 1. So 2 here as it is 2 into 2 plus 3 into 1, that is 1/k. So 4 plus 3, that is 1/k. That is 7 is equal to 1/k. अब कैसे आप k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. 7k is equal to 1 और k is equal to 1/7. So the value of k will be 1/7. Sorry, here it is, yes, the k is equal to 1/7 answer. हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना था और k का वैल्यू यहाँ पे 1/7. स्टूडेंट्स आपने देखा कि जस्ट हम केवल ये वैल्यूज जो गिवन के सॉल्यूशंस होते हैं x और y के, वो जस्ट इसमें पुट करते हैं. जो भी अननोन वेरिएबल्स होता है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Find the value of k if x is equal to -1/2 and y is equal to 1 -1/3 is a solution of the equation. Question बिल्कुल सेम ही है, देखिए. So here we write 2x plus 3y is 1/k. Put करेंगे x की वैल्यू -1/2 and y की वैल्यू -1/3 given है. x is -1/2 and y is -1/3. So 2 into -1/2 plus 3 into -1/3, that is 1/k. -1 that is 1/k. ये आपका 2 and 2 cancel, 3 and 3 here cancel. Yes. So -1 and -1, -2 is 1/k. So -2k is equal to 1 and k is equal to 1/-2. स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस आता है, और प्लस को अगर प्लस से डिवाइड भी करेंगे तो प्लस आएगा. प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस आता है, और अगर प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो भी माइनस आएगा. तो यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन है, माइनस से डिवाइड किया तो इसका आंसर आएगा -1/2. ये जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. Find the value of k if x is equal to -12 and y is equal to -1 is a solution of the equation 2x plus 3y plus 1/k is equal to 0. So our equation is, that is 2x plus 3y, we can write -1/k. Yes. प्लस 1/k को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं. x की जगह पुट करेंगे आप -12, y की जगह पुट करेंगे आप -1 इन दिस इक्वेशन. तो 2 into -12 plus 3 into -1, that is -1/k. So -24 -3, that is -24 -3, that is sorry, yes, -24 -3 is equal to 1/k. Sorry, -1/k. So -27, see here, is equal to -1/k. अब हमें प्रॉब्लम ये आई कि इस माइनस साइन को कैसे रिप्लेस करें. देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. -27k इज -1, k इज इक्वल टू -1/-27. आपने देखा होगा माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस. सिमिलरली माइनस डिवाइडेड बाय माइनस दैट इज ऑल्सो प्लस. तो देखिए ये न्यूमरेटर में भी माइनस साइन है और डिनोमिनेटर में माइनस साइन है. माइनस को माइनस आप डिवाइड करेंगे दैट इज प्लस, और साइन चेंज कर दिया प्लस, एंड दैट इज k इज इक्वल टू 1/27 आंसर. दैट इज द वैल्यू ऑफ k. वापस देखिए, 2 into -12 -24, 3 into -1 -1, तो -24 and -3 that is -27, that is equal to -1/k. Minus minus plus, so k is equal to 1/27, and this is the correct answer. So that's all for this class. Thank you very much. Please keep watching. Thank you.